Yes. So let's start by doing some questions. All the solid figures completed in the last class. Now we'll solve some questions. Just a minute. Okay, so let's take up the first question. And that question is, I'm copying the question. Yes. This is my question. क्या लिखा है क्वेश्चन में? The base diameter of a solid in the form of a cone is 6 centimeter and the height of the cone is 10 centimeter. It is melted and recast into spherical balls of diameter 1 centimeter. So what we are supposed to find is the number of balls thus obtained, right? This is what we are supposed to find. चलो, so क्या दे रखा है क्वेश्चन में? Question says that the base diameter of a solid in the form of a cone is 6 centimeter. So we have a cone. ये cone है हमारे पास. Now this cone, चलो इसको we'll draw it properly. So this is my cone, let's say. Fine. Now इस cone का हमें क्या दे रखा है? Radius दे रखा है 6 centimeter and we know the height of the cone. That is 10 centimeter. It is melted and recast into spherical balls. So इसको हमने melt कर दिया. मेल्ट करने के बाद इससे हमने स्पेरिकल बॉल्स बना लिए. तो हमें ये बताना है कि कितने बॉल्स बना सकते हैं हम. ठीक है. सो द आइडिया इज कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा उसको मेल्ट करके बॉल्स बनेंगे, तो जितना कोन का वॉल्यूम था उतना ही यूज होगा टू मेक द स्पेरिकल बॉल्स, राइट? होपफुली एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस. सो आई कैन से दैट लेट n number of balls be made. ठीक है, तो हमने बोल दिया कि n नंबर ऑफ बॉल्स बना सकते. नाउ द आइडिया इज जो भी वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, द वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल बॉल, राइट? क्योंकि कोन पूरा मेल्ट होके कुछ n नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स बना रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा. जितने बॉल्स बनेंगे उनका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम इक्वल होगा. So what is volume of cone? It is 1 by 3 pi r square h. And what is volume of spherical ball? It is 4 by 3 pi, let's say, r cube. So small r value is 6 centimeter, h value is 10 centimeter given in the question. And what is capital R? Diameter is 1 centimeter. So the radius will be half of it, 1 by 2 centimeter, correct? So यहाँ से pi और pi cancel हो जाएगा. So we will get 1 by 3 into what is radius of the cone, that is 6 square, into height is 10 is equals to n into 4 by 3 into r cube, that is 1 by 2 whole cube. So if I simplify this, क्या मिलेगा मुझे? This would be equal to, ये आ जाएगा 36 into 10 by 3 और इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 8 by 4. This is equal to n. So n हमें कैलकुलेट करना है. So I can see 3 and 3 cancel. 4 1 जा 4, 9 जा 36. So how many balls I can make? See if I have done the calculations correctly. अच्छा, the base diameter is given to me. अरे आप बताते भी नहीं हो यार. Diameter given है ना? अरे सब सो रहे क्या क्लास में? No one is telling me. हाँ, r equal to 3 होना चाहिए था.
तो मैंने गलत लिख दिया और आपने बताया भी नहीं, इसका मतलब किसी का कुछ भी ध्यान नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्लास में। चलने दो, हम कौन सा पढ़ने वाले। सो दिस इज 3 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9, ये 3 से 3 अभी भी कैंसिल होगा, दिस इज 4, 2 2 सा एंड 2 5 सा, ये 2 4 सा। So now I can see that number of balls will be equal to 5 into 4 is 20 into 9 is 180. So 180 number of spherical balls can be made. किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? अभी भी स्टूडेंट्स आर कमिंग इन द क्लास। अरे अभी तो 10 मिनट हो गए बेटा क्लास शुरू होके, अभी भी आ ही जा रहे हो। चलो, आई थिंक आज किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, चलो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में? द क्वेश्चन सेज दैट by melting a solid cylindrical metal, a few conical materials are to be made. ठीक है, if 3 times the radius of the cone is equal to twice the radius of the cylinder and the ratio of the height of the cylinder and the cone is this much, find the number of cones which can be made. Okay, तो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते, फिर करने में आसानी रहेगी। बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलिंड्रिकल मेटल, तो इसमें क्या है कि एक सिलिंड्रिकल मेटल को मेल्ट कर दिया तो उससे क्या है कि कुछ कोन बना सकते हैं अपन, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में, कोन बनाने हैं। अब वो कितने कोन बनेंगे, ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा कि एक सिलिंड्रिकल मेटल को, सिलेंडर को मैंने मेल्ट किया तो उससे कुछ कोन बनाने हैं, अब वो कितने कोन बनेंगे बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, चलो, सो क्या दे रखा है, चलो यहाँ पे सिलेंडर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे कोन लिख लिया। उसने बोला इफ 3 times द रेडियस ऑफ द कोन, तो मैं क्या बोल देता हूँ कि सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर बोल देते, इसकी रेडियस को स्मॉल आर, इसकी हाइट को कैपिटल एच बोल देते, इसकी हाइट को स्मॉल एच बोल दिया मैंने। तो वो बोल रहा है इफ 3 times द रेडियस ऑफ द कोन, तो 3 times रेडियस ऑफ कोन कितना है, स्मॉल आर। So first thing given to me is that 3 times of r. This is equal to twice the radius of the cylinder. So 2 times of r. ठीक है, ये given है. So this is the first thing given to me. और क्या given है? And the ratio of the height of the cylinder. तो height of the cylinder कितना है? Capital H divided by height of the cone, that is small h. This is equals to 4/3. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 3 times of capital H is equals to 4 times of small h. ठीक है, हमें क्या निकालना है कि कितने कोन्स बन सकते हैं। तो अगेन द आइडिया इज सेम कि जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेल्ट, मतलब जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था वो मेल्ट होके उससे कौन बनेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू, मान लेते कि n कोन्स बनेंगे, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एक्सप्लेन बाय डायग्राम, इसमें डायग्राम क्या बनाओ बेटा, मतलब कोन का डायग्राम बनाओ और सिलेंडर का डायग्राम बनाओ। डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसमें, चलो ठीक है बोलते हो तो बना देता हूँ। ये देख, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये देख अच्छा डायग्राम बना ना, इसको मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करना का मतलब क्या हुआ कि इसको हीट करने से वो मेल्ट हो जाएगा, हीट करेंगे ना तो पिघल जाएगा वो पिघलने के बाद क्या होगा कि जो मटेरियल पिघल गया वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, फिर उससे कोन बना रहे, तो उससे मान लीजिए इस तरह से कोन बन गए। व्हाट इज द फिगर यू आर ट्राइंग टू आस्क मी बेटा, मेरे को भी समझे, ये मान लेते इस तरह के कोन बन गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ऐसे कितने कोन बनेंगे। ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो कितना आएगा, दैट शुड बी पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच n into volume of one cone, that will be 1/3 into pi r square h. ये एक कोन का वॉल्यूम और एक कोन का रेडियस और एक कोन की हाइट लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। सो n निकालना है यहाँ पे। नाउ वी आर सपोज टू यूज दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन, तो इनका यूज कर लेंगे हम। सबसे पहले पाई को उड़ा दो, उड़ गया पाई। जैसे पाई उड़ गया तो यहाँ पे n लिख लो पहले, कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर एच अपॉन स्मॉल आर इंटू स्मॉल एच, स्मॉल आर स्क्वायर सॉरी, ठीक है। ओके, अब अगर ये आ गया तो दिस इज n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एंड यहाँ पे कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। तो n इज इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.77। अरे यार 1.77 नंबर हो सकता है क्या कोई, मतलब एक पूरा कोण और दूसरा 77% कोण, ऐसे नहीं होता। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको 3/2, यहां से देखो 3/2 आ जाएगी। सो दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच की वैल्यू देखो यहां से, कैपिटल एच अपॉन ये यहीं पे लिख रखी है 4/3, 4/3। सो दिस इज 4/3। सिंप्लीफाई दिस, n is equals to 3 into 9 upon 4 into 4/3। सो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, कितना आ गया n, n is equals to 9। तो 1.77 भाई कैसे आया 1.77, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग एज 9। हाँ, बाकी लोगों का भी 9 आ रहा है, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या क्वेश्चन? चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन अभी। हाँ, कुछ लोगों को इजी लगेंगे, कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लगेंगे, वो तो दोनों तरफ से चलेगा। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके मेरे को इसका आंसर बताओगे। अगेन एन इजी क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। A semicircular sheet of metal of diameter this much is bent to form an open conical cup. Find the capacity of the cup. तुम्हें क्या निकालना है, capacity of the cup। चलो ट्राई दिस, देखते कितने लोगों का सही आंसर आता है।
पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हो. पाई यू कैन यूज 22/7. 17,248 क्यूबिक सेंटीमीटर. 17.248 लिखा है बेटा कि क्या लिखा है? एनीवेज, लेट्स सी. ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो शुड नॉट बी इजी. आई थिंक 622.4 जो बोल रहे हैं दैट शुड बी करेक्ट. देख लेते हैं अभी. सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल कितना 28 डायमीटर. तो तुम देखो कि सेमी सर्कुलर शीट होगा ना, तो सेमी सर्कुलर शीट इस तरह से कुछ होगी. ठीक है, अब इसको जब बेंड करोगे ना टू फॉर्म अ ओपन कोनिकल कप, तो इसको बेंड करने का मतलब क्या कि इसको ऐसे, जैसे देखो ये सेमी सर्कुलर शीट थी, इसको ऐसे बेंड कर दिया मैंने, तो ओपन कोनिकल कप बनेगा. ठीक है, एंड दैट कोनिकल कप जो होगा उसका जो क्या बोलते हैं उसको बेस होगा, उसका जो बेस होगा द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. दैट इज द आइडिया वी वुड बी यूजिंग. ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं कि ये जो दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर शीट. तो मैंने ले लिया. लेट जो स्लांट हाइट ऑफ द कोन होगा, ठीक है, ये देखो इस तरह का कोनिकल कप जो बनेगा, इसका जो स्लांट हाइट होगा ना दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस. तो मैं बोल सकता हूँ स्लांट हाइट ऑफ कप, क्योंकि कौन है, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ शीट. फर्स्ट थिंग, रेडियस ऑफ शीट, दिस इज टू बी विजुअलाइज्ड. आप अगर देखो इस सेमी सर्कुलर शीट को अगर बेंड करोगे तो वो कौन बनेगा. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू थिंक. तो यहाँ से एल की वैल्यू कितने आ गई, डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वॉइस इज कटिंग. सबको वॉइस ब्रेक होके आ रहा है, चेक करो. अगर सबको आ रहा होगा तो आई चेक माई इंटरनेट कनेक्शन. अगर एक को आ रहा होगा तो हाँ, अच्छा सबको क्लियर है, देख लो बेटा. तो जिसको क्लियर नहीं आ रहा ही शुड और शी शुड चेक हिज इंटरनेट कनेक्शन. चलो, सो अब मैं क्या बोल रहा था कि स्लांट हाइट ऑफ कप तो रेडियस ऑफ शीट के बराबर है. अच्छा, अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने इसको फोल्ड किया इस सेमी सर्कुलर शीट को, तो कोन बन गया. तो जो बेस ऑफ कोन होगा दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द sheet. So I can say that circumference of base of cup, circumference of base of cup is equal to circumference of sheet of semicircular sheet. तो बताओ सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कप कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द कप, सो आर ले लेते हैं. सर्कमफरेंस ऑफ द शीट कितना होगा, सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट है, तो सिंस इट इज सेमी सर्कुलर इट शुड बी पाई आर. 2 पाई आर नहीं होगा, सिर्फ पाई आर होगा एंड दैट शुड बी 14. ठीक है, सिंस इट इज सेमी सर्कुलर शीट. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से पाई को तो सीधा उड़ा दिया मैंने, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर. तो दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कप. अब मुझे क्या चाहिए, कैपेसिटी निकालने के लिए आई नीड दी हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के लिए. तो अगर हाइट चाहिए मुझे, तो ये कौन नए नए लोग आ जाते क्लास में, आज तो बहुत ज्यादा ही नए नए लोग दिख रहे हैं मेरे को. ये अपने क्लास के भी है क्या कि तुम लोगों ने अपना जो ग्रुप पे मैंने लिंक शेयर किया वो दूसरों अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, राइट? है ना, कोई बात नहीं, अब मेरे को पता चल जाएगा कौन कौन एक्स्ट्रा है. अब मैं बताता हूँ, है ना, बहुत
शेयर करते हो क्या अपने दोस्तों के साथ लिंक? ओके सो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। सो आई नो फॉर कोन द रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, रेडियस एंड हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर इज हाउ मच, 14 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 196 माइनस 49। तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक दिस शुड बी 49 इंटू 3, है ना, बिकॉज इफ आई डू 49 इंटू 4, ये 49 इंटू 4 लिखा हुआ है 196। तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 इंटू 4 माइनस 1। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 49 इंटू 3। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है दी हाइट ऑफ द कोन इज 7√3। 7√3 इज दी हाइट। चलो अब अगर 7√3 हाइट आ गई तो अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ कप। सो आई कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ कप ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। सो यहाँ पे अब आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितना यूज करेंगे, 22/7। आर की वैल्यू 7 थी, 7 क्यूब, एंड एच कितना है 7√3, ये 7 का क्यूब है। दिस इज इक्वल टू 7 से 7 गया, सो दिस इज 22 इंटू, अरे सॉरी क्यूब कहाँ से आ गया, स्क्वायर है ना, ये यार तुम बताते नहीं फिर से, दिस हैज टू बी स्क्वायर, 49 इंटू √3। आई थिंक इसकी कैलकुलेशन तुम करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू वुड बी गेटिंग 622.4 सेंटीमीटर क्यूब। जिन्होंने किया आई थिंक उनका आंसर यही आ गया। ओके यस बेटा आई एक्सप्लेन। चलो देखो कैसे समझना है, तुम सोचो इसको अभी। देखो अगर तुम्हारे पास कोई, मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर भी नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता। तुम्हारा जो ये होगा ना, तुम्हारे पास ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर या ऐसा कुछ होगा ना। तो सेमी सर्कुलर शीट है, सेमी सर्कल शीट है तुम्हारे पास, सेमी सर्कुलर पेपर ले लो। अब उसको तुम फोल्ड करो। जब तुम उसको फोल्ड करोगे तो जो सेमी सर्कुलर शीट के दो एंड होंगे उसको ऐसा मोड़ के ज्वाइन कर दोगे, करेक्ट। तो अब तुम देखो कि ये जो सेमी सर्कुलर शीट का जो बेस था, ठीक है, सरकमफरेंस था, वही सरकमफरेंस जाके क्या बन गया, सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। दैट इज द आइडिया कि जो सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन होगा दैट विल बी इक्वल टू द सरकमफरेंस ऑफ शीट, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और फिर आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रखा है,
water is flowing at the rate of 5 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. Find the time in which the level of water in the tank will rise by 7 centimeter. So everyone should try this. Very good question. Chalo, I'll give you 2 minutes. You should try, then we'll discuss. It's buffering. सबके साथ बफरिंग हो रहा है. ओके बेटा, जिसके लिए बफरिंग हो रहा है दे शुड चेक द इंटरनेट कनेक्शन. हाँ ठीक है, समझ गया मैं. अब हर किसी को लिखने की जरूरत नहीं है. डू दी क्वेश्चन एंड टेल दी आंसर. वन आंसर आई एम गेटिंग इज 2 hours. एक ने आंसर दिया मुझे 2 hours. यस 2 hours आ गया सबका. चलो ठीक है, डिस्कस करें अभी. एस काफी लोगों ने कर लिया इसको. तो क्या लिखा है? वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, हाँ, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक. ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हमें समझना है तो देखो फिगर से समझा देता हूँ कि ये देखो, ये रेक्टेंगुलर टैंक मान लिया मैंने. इस तरह से मेरा रेक्टेंगुलर टैंक है. ठीक है, ये मान लिया टैंक. ओके, ये टैंक आ गया. अब इसमें क्या है? इसमें पानी आ रहा है. कहाँ से? पाइप से पानी आ रहा है. तो ये पाइप बना लिया मैंने. ठीक है, ये पानी, और जो पानी आ रहा है उसका रेट दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर. 5 किलोमीटर पर आवर की रेट से पानी गिर रहा है इसमें. अब वो ये बोल रहा है कि ये टैंक जो है इसका लेंथ कितना दे रखा है? 50 मीटर्स. ये 50 मीटर्स दे रखा है एंड विड्थ इज हाउ मच? 44 मीटर्स. तो जब इसमें पानी आ रहा है तो कितने टाइम में ये जो टैंक है, दी लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर. तो कितने टाइम के बाद पानी यहाँ तक आ जाएगा? और ये हाइट कितनी है वो भी दे रखा है उसमें. देखो, दिस हाइट इज, ये हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर. दिस इज द क्वेश्चन. ये तो सबसे पहले फिगर से क्वेश्चन लिख लिया मैंने. ठीक है, चलो. ज्यादा अगर बकवास करने का मन कर रहा है ना क्लास में, तो नो, 3.8 आवर्स इज रॉन्ग. जिनको ज्यादा बकवास करने का मन कर रहा है ना, मैं क्लास से सीधा रिमूव कर दूंगा. टेंशन नहीं लेना ज्यादा. ठीक है ना, बहुत ज्यादा मस्ती आती है ना अपने को, तो फिर उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे. तो सबसे पहले क्या करो कि तुम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो टैंक में, कि टैंक में कितना पानी होगा. ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है
So volume of water in tank, that is equal to how much? ये रेक्टेंगुलर टैंक है तो क्यूबॉइडल शेप होगा, तो यस 2 आवर्स इज करेक्ट, 2 आवर्स इज करेक्ट। तो रेक्टेंगुलर टैंक होगा तो क्यूबॉइडल शेप का टैंक बोल सकते हैं, एंड दी वॉल्यूम शुड बी L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना में दे रखा है 50 मीटर्स, B कितना दे रखा है 44 मीटर्स, और 7 सेंटीमीटर इज दी हाइट। इतना पानी आएगा टैंक में, तो 7 सेंटीमीटर होने के कारण आई शुड कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो दिस इज नाउ 51 जा 52 जा 2 1 जा 222 जा, दिस इज 154 मीटर क्यूब। इतना पानी टैंक में भर जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ये 154 मीटर क्यूब पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट दिस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो, मैंने मान लिया लेट इन इन टी आवर्स, लेट इन टी आवर्स वाटर इन टैंक, water in tank will rise by 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, और रेट ऑफ फ्लो कितना दे रखा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वाटर इसमें जाएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन 1 आवर द लेंथ ऑफ वाटर दैट विल गो इनटू द टैंक इज करस्पॉन्डिंग टू 5 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि टी आवर्स में कितना जाएगा। तो ये टी आवर्स में कितना जाएगा इसको कैसे निकालेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ठीक है, जस्ट अ मिनट है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये टी आवर्स में कितना लेंथ ऑफ वाटर भरेगा वो चेक कर लेते हैं। सो नाउ 5 किलोमीटर इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5000 मीटर। देखो, ये 5 किलोमीटर का मतलब क्या है कि ये इसको तुम इस लेंथ से कंपेयर करो कि 1 घंटे में इतना 5 किलोमीटर लेंथ ऑफ द वाटर इज गोइंग इनटू द टैंक। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज नथिंग बट 5000 मीटर्स। अच्छा, तो यहां से टी आवर्स में कितना आ जाएगा? टी आवर्स में आई कैन से दैट 5000 टी मीटर्स ऑफ वाटर विल बी देयर इन दी टैंक। अब तुम ये देखो कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है वो कितना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये जो पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना, तो यहाँ पे पाई 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ पाइप इज गिवन टू मी, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर का मतलब दिस इज 7 अपॉन 100 का स्क्वायर, बिकॉज हम मीटर में कैलकुलेशन करेंगे। और हाइट कितनी है वाटर की? तो ये हाइट होगी, ठीक है, बिकॉज एज आई सेड कि इतना लेंथ ऑफ वाटर फ्लो कर रहा था 1 घंटे में। हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी आवर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने निकाल लिया कि टी आवर्स में दिस इज द लेंथ ऑफ वाटर, और इसको तुम ऐसा बोल सकते हो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, कॉलम जो भी बोलना है। ठीक है, सो दिस इज इनटू 5000 टी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 22/7 इंटू 7 अपॉन 100 ठीक है, इंटू 5000 टी। तो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल, 51 जा 52 जा, एक 7 से 7 गया, 2 एंड 11, तो कितना बचा? 11 एंड 7, सो दैट इज इक्वल टू 77 टी मीटर क्यूब ऑफ वाटर पाइप से निकल रहा है कितने आवर्स में? टी आवर्स में। अब मुझे क्या चाहिए कि इन टी आवर्स ये कितना भर दे वो पानी? 154 मीटर क्यूब के बराबर भर दे। सो नाउ आई कैन से दैट this volume of water which was flowing through the pipe, that is 77 t, should be equal to 154। तो यहां से मुझे t कितना मिलेगा? t will be equal to 154 upon 77
and that is equal to 2 hours. ये आ जाएगा 2 hours के equal. So this should be my answer. ठीक है, देखो एनी कंफ्यूजन? यही पार्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड. हाँ चलो, सो आई थिंक अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म. देयर इज नथिंग मोर वी कैन डिस्कस इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो क्या अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चले? चलो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है हमें. सो लेट्स गो टू द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक है ना. स्टैटिस्टिक्स में देर इज सिंपल इजी इजी क्वेश्चन ही होते हैं जो करने पड़ते हैं. स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया ना. यस, स्फीयर, हाँ ठीक है. अभी क्वेश्चन करने और कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन करते हैं, नो इश्यूज. स्फीयर हेमिस्फीयर लास्ट क्लास में तो डिस्कस हुआ है, नहीं याद क्या? चेक करो ना लास्ट क्लास. चलो, अभी किसी ने और क्वेश्चन बोला है तो आई विल टेक द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. अगर आपको और क्वेश्चन करना है तो आई एम हैप्पी. क्वेश्चन नंबर 5, ये लो. क्वेश्चन नंबर 5. चलो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, स्फीयर हेमिस्फीयर के भी क्वेश्चन चाहिए क्या? और स्फीयर हेमिस्फीयर के भी कर लेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी. मतलब देयर इज नथिंग मच देयर इन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, बट इफ यू वांट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें क्या है. फर्स्ट यू ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर स्फीयर हेमिस्फीयर के क्वेश्चन करेंगे. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? आई नीड टू चेक. मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट. हाँ, अभी मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन. जस्ट अ मिनट, ठीक है. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. पहले तुम ट्राई कर लो, अगर तुम्हारा ट्राई करके हो जाए तो देन आई विल एक्सप्लेन. हाँ, आंसर भी आ गया मेरे पास. What will be the height of water in the cylindrical vessel if the rainfall is 1 सेंटीमीटर? तो height of the water पूछा हुआ है. So okay, चलो देखो इसको पहले भी चेक करते हैं अभी. तो रेन वाटर देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन विल डू. रेन वाटर फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर्स. तो सबसे पहले वो रेक्टेंगुलर सरफेस कौन सा होगा, मान लेते हैं दिस इज द रेक्टेंगुलर सरफेस. देखो, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है जिस पे ये गिर रहा है, ठीक है. इसको तुम एक
टैंक की तरह कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर सरफेस बोलने का मतलब क्या है कि कुछ एक कंटेनर टाइप होगा, रेक्टेंगुलर कंटेनर टाइप, जिसमें ये पानी गिर रहा होगा, रेनफॉल है ना। तो मैंने क्या किया, मान लेते कि टेरिस पे अपने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर टैंक रख दिया, ठीक है, वो ये मेरे सामने रखा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि इसका लेंथ 6 मीटर्स है एंड इसका विड्थ 4 मीटर्स है। सो रेन वाटर विच फॉल्स ऑन टू दिस, यहाँ पे पानी गिर रहा है, दिस इज द वाटर फॉलिंग, इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस। तो इसमें जितना भी पानी भरा, ठीक है, इसको अपन ने सिलेंडर में डाल दिया, मतलब एक सिलेंड्रिकल वेसल अपने पास, उसमें डाल दिया। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इफ द रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें पानी रेक्टेंगुलर सरफेस पे पानी गिर रहा है, तो ये यहाँ 1 सेंटीमीटर हाइट तक भरेगा। दिस इज 1 सेंटीमीटर, मीनिंग कि ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसमें अप टू द हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर पानी फिलअप होगा। आई थिंक अभी क्लियर होगा। इसका हाइट जो भी होगा, वॉट एवर इज द हाइट ऑफ दिस टैंक, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ दिस बिकम्स वेरी इजी अगर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो निकाल लेते हैं पहले, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इसको क्या किया अपन ने, इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में ट्रांसफर कर दिया। चलो वो भी बता देता हूँ फिगर से। ये पानी को मैंने उठा के इसमें डाल दिया। अब मान लेते पानी है इस हाइट तक कुछ फिलअप हुआ होगा, तो ये मेरे को हाइट h निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले विल कैलकुलेट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, क्या निकाल ले, ये पानी है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड निकाल लेते। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, ये किसके इक्वल होगा, क्यूबॉइडल, मतलब रेक्टेंगुलर सरफेस है तो उसको हम क्यूबॉइडल की तरह सोच सकते हैं। सो लेंथ दैट इज 6 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर। सो दिस मच इज द मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम कलेक्टेड। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 4 1 जा 4, 25 जा, सो दिस इज 6/25 मीटर क्यूब। अब इतना मीटर क्यूब ऑफ जो पानी मेरे पास इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे गिरा, उसी को मैंने सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब मान लेते कि अप टू हाइट h सिलेंडर में चले गया पानी। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ दिस वाटर कलेक्टेड मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस वॉल्यूम ऑफ वेसल लिख सकते हैं हम, सिलेंडर से अच्छा वेसल वर्ड यूज किया है। सो दिस वॉल्यूम ऑफ वेसल शुड बी इक्वल टू 6/25 मीटर क्यूब। और ये वेसल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट शुड बी पाई इनटू रेडियस ऑफ वेसल, कितना दे रखा है, इंटरनल रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज 20 स्क्वायर इंटू h एंड दिस शुड गिव मी माय आंसर। अच्छा ये सेंटीमीटर में दे रखा था ना, हाँ, तो देन आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, माय मिस्टेक। इसको 20/100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, ये 21 जा 25 जा, सो h इज इक्वल टू 6/25 इंटू ये 5 का स्क्वायर उधर जाके 25 और डिवाइडेड बाय पाई। सो माय आंसर इज, ये 25 से 25 गया, 6/पाई मीटर। अब 6/पाई मीटर आ गया, तो इसको तुम कन्वर्ट कर लो, क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल में। तो 6 डिवाइडेड बाय 3.14 अगर मैंने किया, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.191 मीटर्स। ये मेरा आंसर होगा। उसने नियरेस्ट इंटीजर पे बोला है, तो देन यू कैन गिव 2 मीटर्स, 2 मीटर्स द आंसर, और 200 सेंटीमीटर, वॉट एवर यू वांट। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, ठीक है। क्वेश्चन 9 इन लेवल 1, एक मिनट, क्वेश्चन 9 इन लेवल 1, लेट मी चेक, कर लेते बेटा अभी सॉल्व। क्वेश्चन 9 इन लेवल 1, वेयर इज द बुक, पेज नंबर बता दो मुझे, पेज नंबर इफ यू कैन टेल मी, तो जल्दी आ जाएगा मेरे पास। 287, यस, ओके, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते। और जो इसने पूछा हुआ है, हाँ 287 मिल गया मुझे। सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ लेवल
1, एक्सरसाइज 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, if the volume of two cones are in the ratio 1:4 and their diameters are in the ratio 4:5, then the ratio of their heights is। चलो, तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है V1:V2, कितना दे रखा है 1:4। देन क्या दे रखा है देयर डायमीटर्स, तो डायमीटर मान लेते हैं D1:D2, दिस इज इक्वल टू 4:5, और हमें रेशियो ऑफ द हाइट निकालना है। ओके, हो जाएगा, इट्स इजी। ओके, विल डू दैट ऑल्सो। सो V1/V2 कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4, और यहाँ पे D1/D2 दे रखा है, सो D1/D2 को हम क्या लिख सकते हैं, diameter is nothing but 2 times of radius. 2 times of radius is equals to 4/5. So I can say that R1/R2 is equals to 4/5. Okay. Now what is volume of cone? Cone दे रखा है, volume of cone कितना होता है 1/3 pi r square h. So pi r1 square h1 ले लेते height, divided by 1/2 pi r2 square into h2. This is equals to how much? This is equals to 1/4. तो ये 1/3 पाई गेट्स कैंसल्ड ऑफ, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा H1/H2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R2² अपॉन R1²। सो आई थिंक माई आंसर शुड बी रेडी नाउ। 1/4 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज R2/R1, यहाँ पे जाओ, R2/R1 देखूंगा तो दैट इज इक्वल टू 5/4, 4/5 नहीं होगा, 5/4 होगा। So this is 1/4 into 5/4, that is 25/16. So 25/64. Is there an option 25/64? चेक कर लो, should be there, क्योंकि सही किया हमने। Yes. हॉट्स कॉर्नर 13, ये कहाँ पे मिलेगा बेटा, पेज नंबर बताना। पेज नंबर बताने से मेरा आसान हो जाएगा, देन आई कैन। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है ये तो, टू 93। हम्म, 293 नहीं, 294 है। हाँ, 294 पे दिख रहा है। अच्छा, वो ओलंपियाड वाले क्वेश्चन, करेक्ट। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 ना। क्या लिख रहा है, इन द गिवन फिगर a right circular cone of diameter this much and height rests on the base of a circular cone of this, their bases are in the same plane and the cylinder is filled with water up to a height of this much. If the cone is removed, then find the height to which the water will fall. ओके, तो कितने लेवल में वाटरफॉल होगा, अगर मैंने कोन को निकाल लिया तो कोन को जैसे मैं निकाल लूंगा तो जितना वॉल्यूम ऑफ कोन है उसके करस्पॉन्डिंग उसमें पानी कम हो जाएगा, राइट। सो सी द आइडिया इज कि देखो ये वाला क्वेश्चन है ना जहां पे फिगर बना रखा है, लेट प्लीज कंफर्म कि यही क्वेश्चन है, नहीं तो मैं कुछ और सॉल्व करूंगा और तुम्हें डाउट कुछ और होगा। देखो यही क्वेश्चन है क्या, यहां तक पानी दिख रहा है इसमें, और ये ऐसा कुछ है। हाँ बताओ जल्दी, यही क्वेश्चन है ना। तो इफ आई सी द क्वेश्चन अगेन, ये पूरा पानी भर रखा है ना, तो ये पूरा पानी है उसने बोला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ओके, अब समझ गया मैं, अब शांत बैठो। सर्कुलर कौन दे रखा है, डायमीटर आर है, डायमीटर आर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, उसने डायमीटर आर लिखा है, तो आई थिंक या तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या तो वो सही में आर बोलना चाहता है। And rest on this base of a right circular cylinder of radius r centimeter. ओके, तो इसका जो डायमीटर है वो आर के इक्वल है, और इसका मतलब रेडियस ऑफ कोन if I go by the language of the question, that will be equal to r/2, ठीक है। and what is radius of cylinder, radius of cylinder is r itself, ठीक है, radius of cylinder is r। their bases are in the same plane and the cylinder is filled with water up to a height of 12 centimeter, okay।
इफ द कोन इज रिमूव देन फाइंड द हाइट टू विच वाटर लेवल विल फॉल। तो अब देखो, सबसे पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कोन को बाहर निकाला, कोन को बाहर निकालने से क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। तो वो ये पूछना चाहता है कि कितने हाइट से कम हो गया। मान लेते हैं h हाइट से पानी कम हो गया, ठीक है। चलो, सो व्हाट आई कैन से इज कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब जितना पानी कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा भाई, जितना, जैसे मैंने कोन को उठा लिया वेसल में से, तो जितना कोन का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था कोन, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर नीचे जाएगा। तो वो वॉल्यूम के टर्म्स में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन सिलेंडर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर इंटू जितना वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया h। क्यों h बोला, क्योंकि दिस इज द हाइट जिस रिस्पेक्ट में वो वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है। तो या तो तुम काम करो, इसको एज इट इज रहने दो। सो नाउ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा कोन का, r/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड दी हाइट टू विच वाटर लेवल विल फॉल। तो वाटर लेवल किस लेवल पे फॉल करेगा, आई थिंक नाउ द आंसर शुड बी क्लियर। ये 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर, चेक कर लो। So this volume of water displaced in cylinder that will be equal to pi r square h की इक्वल होगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर में से डिस्प्लेस हो गया। सो यहाँ से पाई और पाई गया, यहाँ से h आ जाएगा 1/3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 12 अपॉन ये आर स्क्वायर यहाँ आ गया। तो आर स्क्वायर से आर उठा, 3 4 12 गए, तो 1 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अभी और कुछ बचा किसी का, हो गए। क्या कराना था अभी, स्पीयर के कुछ क्वेश्चन। अच्छा चलो स्पीयर के क्वेश्चन कर ले भाई, किसी को स्पीयर के क्वेश्चन करने थे ना। करा तो दिए थे ना मैंने लास्ट क्लास में कि हाँ एक ही क्वेश्चन कराया था, अच्छा इसीलिए लग रहा है क्या। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लो, दिस इज द क्वेश्चन। ओके नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी टोल्ड बट नो प्रॉब्लम, अगर आपको चाहिए तो आई टेल। दिस इज द क्वेश्चन, करो इसको सॉल्व। वॉट एवर क्वेश्चन नंबर आई डोंट रिमेम्बर, यू कैन जस्ट सॉल्व दिस। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ओके ठीक है। सो इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। आई थिंक वेरी इजी,
डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है हमें? वी आर सपोज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। सो हेमिस्फेरिकल टैंक बोल रखा है उसने। सो सी दिस इज द क्वेश्चन कि ये हेमिस्फेरिकल टैंक इस तरह से, ये हेमिस्फीयर होगा इस तरह से। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सम आयरन। ठीक है, ये आयरन से इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, दिस इज द आयरन जिससे ये बना हुआ है। नाउ द आइडिया इज, हमें अगर इसको ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेंगे तुमको, दो दो सर्कल दिखेंगे ना। अब इन दोनों सर्कल में एक बाहर वाला रेडियस होगा, आउटसाइड रेडियस कैपिटल आर, और एक छोटा रेडियस होगा स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे कि वॉल्यूम ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ, ये क्या लिखा है इसने? अच्छा ये उसने क्वेश्चन ही पेस्ट कर दिया क्या? अरे तू मेरे को नंबर बोल देना, इतना पेस्ट क्यों किया, मैं क्वेश्चन वैसे ही बता दूंगा। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। अरे हाँ, तो 1 सेंटीमीटर थिक बोला है, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर थिक, ये है ना 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर को ऐड करोगे तो दिस शुड बी 1.01। इसको 1/100 करेंगे, दिस मेनी मीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक that will be equal to 2/3 pi r cube minus small r cube। ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसमें कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा अभी। 2/3 इंटू पाई इंटू 1.01 का क्यूब माइनस 1 क्यूब, एंड इफ यू डू द कैलकुलेशंस 0.06348 आ जाएगा। 0.06348 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। हाँ बता रहा हूँ। They did not ask volume of tank, they did ask us volume of iron used। ठीक है, volume of iron used लिख लो, no problem, same thing होगा रे। volume of iron used, okay, that will be corresponding to this। ये है ना iron, इसके corresponding। okay, हाँ इसने भी कौन सा डाउट लिखा था? पेज नंबर 294, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ओके, मैं डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, पेज 294। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% while the radius of the base is increased by 10%, then the curved surface area of cylinder will, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? चलो, अरे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज पूछा है ना। अरे बेटा हॉलो हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल है ना, हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल है, नहीं समझ में आ रहा है क्या तेरे? हेमिस्फेरिकल शेल है, इट्स नॉट अ सॉलिड हेमिस्फीयर। I wrote wrong formula? Which is the wrong formula I have written? Is it so? मैंने गलत फॉर्मूला लिखा है? नो बेटा, इट इज राइट। यू शुड चेक कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ, सो इस पे आ जाते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दी हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय h%। ठीक है, तो देखो पहले ओरिजिनल लिख लेते एंड देन न्यू हाइट लिखते, न्यू एंड ओरिजिनल। ओरिजिनल हाइट मान लेते h होते, तो इसमें क्या किया? इसमें 10% का इंक्रीज किया, ये अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज किया। तो ये कितना हो जाएगा? न्यू हाइट h प्लस 10% ऑफ h, and this will be equal to what? h plus 10/100 of h, so that is nothing but ये 10 से गया, so 11h/10। so 11h/10 is the new height। और आगे क्या बोला है? रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%। तो मान लेते ओरिजिनल रेडियस r था, तो इसको उसने 10% से घटा दिया, तो r माइनस 10% ऑफ r, ये घट गई रेडियस।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे r माइनस r बाई 10 दैट इज इक्वल टू 9r/10। तो अब मुझे पता चल गया कि नई रेडियस कितनी है एंड नई हाइट कितनी है। मुझे क्या कंपेयर करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो ओरिजिनल सी एस ए दैट इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच, और यहाँ पे न्यू सी एस ए, ये न्यू कितना होगा 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 9r/10, दिस इज द न्यू रेडियस आई एम सपोज टू यूज, एंड न्यू हाइट कितनी आ गई 11h/10, 11h/10। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, दिस शुड बी 2 पाई आर एच इंटू 99/100। अब 99/100 से तुम्हें क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम सॉरी कर्व सरफेस एरिया बढ़ गया कि घट गया, 99/100 इज लेस देन 1, तो अंडरस्टूड है इट हैज डिक्रीज्ड, इट हैज डिक्रीज्ड। तो डिक्रीज का मतलब अभी निकाल लेते, क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेस बाय, सो परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज हो गया तो समझ में आ गया। अब कितने से डिक्रीज हुआ देख लेते, तो सी एस ए न्यू माइनस ओरिजिनल, या ओरिजिनल माइनस न्यू लिखना पड़ेगा बिकॉज घट गया है। सो ये ओरिजिनल माइनस सी एस ए न्यू डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल था, ठीक है, इनटू 100। तो कितना आ गया ये, ओरिजिनल कितना था 2 पाई आर एच, और माइनस नया कितना हो गया 2 पाई आर एच इंटू 99/100, और ओरिजिनल कितना था 2 पाई आर एच इंटू 100। तो फटाफट इस 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच को उड़ा दो, ये उड़ गए। तब जैसे ये उड़ गए तो ये आ जाएगा 100 माइनस 99/100 इंटू 100, फिर से ये उड़ गया, दिस इज 1%, डिक्रीज कितना आ गया 1%। क्लियर है, चलो और क्या, चलो वन मोर क्वेश्चन मेरे तरफ से, लेट्स सी इफ यू कैन डू। दिस इज द क्वेश्चन, करो फटाफट कैलकुलेट, इजी क्वेश्चन। The volume of two spheres are in the ratio, the volume of two spheres are in the ratio 64/27. Find the ratio of their surface area. So what you are supposed to find is ratio of their surface area. तुम्हें ratio of volume दे रखा है, surface area कितना होता है 4 pi r square। हाँ बेटा अभी फॉर्मूले लिखेंगे सारे, आपको फॉर्मूले चाहिए थे ना, अभी मैं लिख देता हूँ। सो इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स, तो ले लेते V1 एंड V2 दैट इज इक्वल टू 64/27। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब, 64/27। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 पाई कैंसिल, सो r1/r2 का होल क्यूब 64/27, 64/27, तो r1/r2 कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 एंड 27 दैट इज 4/3। अब ये आ गया रेडियस का रेशो, सरफेस एरिया का रेशो कितना होगा, सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 दैट इज 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, दिस इज r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, and this is 16/9 आंसर। डन, आगे बढ़े।
ओके सो और किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से? चलो आई थिंक अभी और क्या बचा इसमें, एवरीथिंग इज डन, वी हैव स्पेंट इनफ टाइम ऑन दिस। मतलब किसी को कोई डाउट होगा तो दे कैन आस्क। हाँ अभी किसी ने क्या बोला था, मेरे को फॉर्मूले चाहिए। ओके फॉर्मूले आप नोटबुक ओपन करके देखोगे तो मिल ही जाएंगे, बट आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मुझे लिखना है पड़ेगा। चलो फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए क्या क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड के लिए हमने पढ़ा था सबसे पहले सी एस ए। क्यूबॉइड के लिए पढ़ा था सी एस ए, सॉरी सी एस ए बोल रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और लेंथ ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले टी एस ए। टी एस ए क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। फिर सी एस ए क्या होता है, सी एस ए नहीं, लैटरल सरफेस एरिया एल एस ए। फिर से सी एस ए कर रहा हूँ मैं, लैटरल सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एच इंटू एल प्लस बी। फिर क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। और होता है डायगोनल, डायगोनल का लेंथ कितना होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। 267 पेज नंबर पे सारे फॉर्मूलेस दे रखे। देन किसने पूछा मेरे से, आप चेक नहीं करते क्या बेटा? 267 पेज नंबर पे एवरी फॉर्मूला इज गिवन, यस यू शुड रीड दैट ना। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ क्यू, देख लोगे आप पेज नंबर 267 पे, एवरीथिंग इज देयर ना। तो वाई आई शुड राइट अगेन एंड अगेन? टी एस ए इन केस ऑफ क्यू, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, सो दैट शुड बी 6 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर को ए स्क्वायर ले लेते हैं। एल ए से कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, दैट इज साइड क्यूब, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो देख लेना यार। तो मतलब पेज नंबर 267 फॉर्मूले क्या आई शुड राइट, एवरीथिंग इज देयर, मैंने देख लिया। मुझे अपनी पता था 267 पे लिखे होंगे, बट हाँ लिखे तो रहते ही है बुक में कहीं ना कहीं, बट उन्होंने एक ही जगह सब कुछ लिख लिया। सो देख सकते हो। तो क्या फिर आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट चैप्टर पे जाए क्या, स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स तो एकदम इजी है, मतलब वो चलो हाँ, यस चलो लेट, हाँ वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 to 3 मिनट्स में विल स्टार्ट, क्लास छोड़ के मत जाओ, वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स।
यस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो अभी देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि थिंग्स आर वेरी इजी। तो आई विल गो टॉपिक बाय टॉपिक एज यूजुअल एंड फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन आप तो एक्सरसाइज में के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ डेटा होगा, ठीक है, बहुत सारा। जैसे अपन बात कर लेते तुम्हारे मार्क्स की, ठीक है। अगर आपकी बैच में मैंने बोला कि अच्छा आप लोगों ने एग्जाम दिया, उसके मार्क्स सबके कितने आए, तो जो वो सबके मार्क्स है दैट इज द डेटा आई हैव। अब उस डेटा को देखते हुए मैं उसका मीन निकाल सकता हूँ। मीन का मतलब क्या, एवरेज मार्क्स निकाल सकता हूँ। सो एवरेज मार्क्स निकालना या उसका मीडियन निकालना, मोड निकालना, ये जो हम कर रहे डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उसको रिप्रेजेंट करना। एंड रिप्रेजेंट करने का मतलब उसको इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ या पाई चार्ट, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ऑल दिस व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में दिस इज व्हाट वी एसेंशियली डू। अब जो तुम्हारे पास, चलो डेफिनेशन लिख दूं क्या, मेरे पास लिखा होगा कहीं पे, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी डू इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज नथिंग बट कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो कलेक्शन मतलब डेटा का कलेक्ट किया मैंने, फिर उसको प्रेजेंट किया। एनालाइज करने का मतलब उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया, और इंटरप्रिटेशन का मतलब वहां से मीन, मीडियन, मोड निकाल के मेरे को कुछ पता चलेगा कि हाँ इस डेटा के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारी चीजें पता चल सकती है, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा किस तरह का हो सकता है, ठीक है। डेटा जो कलेक्ट करते हैं दैट कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक तो हो सकता है प्राइमरी डेटा हो एंड अनदर कैन बी सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है कि जो एकदम फर्स्ट हैंड डेटा है। इसका मतलब जैसे मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा तो उसको मैं प्राइमरी डेटा बोलूंगा। और अगर मान लो मुझे किसी ने और ने डेटा दे दिया, या किसी के पास डेटा पड़ा हुआ था, मैंने उनसे जाके ले लिया डेटा, और अब मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैं एनालाइज करता हूँ, उस टाइप के डेटा को हम सेकेंडरी डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। सो द डेटा विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय यू इज नोन एज प्राइमरी डेटा। मतलब हम जो सोर्स है, जिस भी चीज का डेटा होगा, जो सोर्स है वहां से अगर हमने पिकअप किया तो दैट विल बी प्राइमरी, और अगर हम किसी और पाथ से उसको इनडायरेक्टली डेटा को ले रहे हैं तो दैट विल बी सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा होगा हमारे पास, इसको हम एनालाइज करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे, और फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसमें सब क्या है कि कुछ देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू शुड नो, मतलब कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच शुड बी रिमेम्बर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दोस। तो आई हैव रिटन दोस दैट आई विल कॉपी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टर्म्स, ताकि आगे पढ़ने में इट वुड बी हेल्पफुल। What are the important terms? The important terms here are, first is range. रेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा होगा, है ना, किसी भी चीज का डेटा हो, तो उस डेटा में कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और कुछ मिनिमम वैल्यू होगी। अब अगर उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर ले, मैक्सिमम और मिनिमम का, तो वो जो डिफरेंस होगा ना दैट विल बी रेंज ऑफ द डेटा। अब इस रेंज ऑफ डेटा का यूज कहाँ पे आएगा, जब हम क्लास इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब आगे भी क्लास इंटरवल वगैरह समझेंगे, क्लास इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे या क्लास विड्थ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पे ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस रेंज को देखते हुए डेटा में जो रेंज, डेटा का जो रेंज होगा उसको देखते हुए हम क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। फिर वेरिएट का मतलब क्या हुआ, वेरिएट इज नथिंग बट जिस भी चीज का वो डेटा लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में वेरिएट की बात हो रही है, कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसको हम वेरिएट बोल रहे हैं। दैट इज नॉट अ वेरी यूजफुल थिंग, ये डेफिनेशन है सिर्फ, जो यूज भी नहीं होगा मोस्टली क्वेश्चन में। देन प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे कर सकते हैं, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था, कलेक्शन, कलेक्ट तो मैंने कर लिया, कलेक्शन इज नॉट अ इशू तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन इज एन इशू। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, कि उसको हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो देन इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो देन बार ग्राफ या फिर
पाई चार्ट, खैर पाई चार्ट तो अभी नहीं पढ़ोगे, बार ग्राफ पढ़ोगे, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो बार ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली, और एनालिटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देन यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबुलर फॉर्म. सो प्रेजेंटेशन कैन बी टेबुलर. यू कैन नोट इट डाउन लेटर ऑन ऑल्सो ना, मतलब आई विल शेयर दिस ना, तो आप बाद में भी लिख सकते हो. यू कैन जस्ट लिसन नाउ. ठीक है. सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल. पीडीएफ भी आ जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास भी होगा. सो वॉट एवर यू वांट. ग्राफिकल. ठीक है. नाउ जैसे मैंने बोला टेबुलर में थिंग्स विल बी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब जब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या. ग्राफिकल में क्या आएगा. ग्राफिकल विल हैव टू थिंग्स. वन इज बार ग्राफ एंड अनदर इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये ग्राफिकल मेथड तो अपन ऑब्वियसली विल गो इनटू दैट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वहां तक तो अभी पहुंच नहीं पाएंगे. विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हियर टेबुलर फॉर्म में. तो अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे डेटा जो मेरे पास है, उस डेटा में जैसे तुम्हारे मार्क्स की अगर मैंने बात करी क्लास में, तो हो सकता है कि काफी लोगों के मार्क्स, मतलब मान लो 50 मार्क्स का पेपर है, काफी लोगों के मार्क्स 30 आ जाएंगे. सो उस वो जो मार्क्स है तुम्हारे, किसी के 10, 20, 30, 40, 35, 36, 37, तो जितने भी स्टूडेंट है उतने नंबर ऑफ डेटाज होंगे मेरे पास. 50 स्टूडेंट्स है तो 50 डेटा. अब ये 50 डेटा मतलब 50 वैल्यूज होंगी. तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, उसको क्या बोल देंगे. फ्रीक्वेंसी बोल देंगे. अब इसी को उसने इंग्लिश की भाषा में लिख दिया. द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स. इजी टू अंडरस्टैंड. नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, इट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अच्छा, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो मैंने यही बता दिया. टेबुलर फॉर्म, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डेटा showing the frequency of each observation is called frequency distribution. So now we will concentrate on how to plot this frequency distribution table, जो काफी लोगों को आता भी होगा. Now in frequency distribution table also, whatever data we have, नो जो हमारे पास डेटा होगा वो अलग अलग तरह से मिल सकता है. डेटा कैन बी इन दी ग्रुप्ड फॉर्म या अनग्रुप्ड फॉर्म. ठीक है. अगर मान लो कि अनग्रुप्ड फॉर्म में आ गया या ग्रुप फॉर्म में आ गया, सो थिंग्स वुड बी डिफरेंट. ठीक है. तो अभी एग्जांपल लेते हैं इसका. अनग्रुप मतलब एकदम रॉ डेटा. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले प्लॉट क्यों कर रहे हैं. जैसे डेटा अगर बहुत सारा होगा मेरे पास, मान लो मेरे पास 1 करोड़ वैल्यूज है. अब उन 1 करोड़ वैल्यूज को तो मैं एक एक करके नोट डाउन नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नोट कर रहे हैं. अब 1 करोड़ तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. मान लो 1000 वैल्यूज है मेरे पास, तो 1000 वैल्यूज है, 1000 स्टूडेंट्स होंगे किसी क्लास में, तो 1000 स्टूडेंट्स के करस्पॉन्डिंग आई विल हैव मार्क्स. तो मेरे पास डेटा ऑफ मार्क्स कितना है, 1000 वैल्यूज है. नाउ टू हैंडल 1000 वैल्यूज इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैन्युअली तो मैं एक एक करके लिखते नहीं जाऊंगा. सो टू हैंडल दोस 1000 वैल्यूज वी आर यूजिंग द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कि हाँ 1 से लेके 100 तक कितने लोगों को मार्क्स मिले, फिर 101 से 200 तक कितने लोगों को मार्क्स कर रहे. तो इस तरह से अगर हम ग्रुपिंग करते जाएंगे तो दैट इज नथिंग बट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप. अनग्रुप में क्या है, मेरे पास सीधी सीधी 1000 वैल्यूज लिख रखी है, उनको तुम देख के बताना पड़ेगा. तो सबसे पहले अभी क्या करते, विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्लॉट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल दिस इज वेरी थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने फटाफट बोल के समझा दिया. विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of raw data. When I'm saying raw data, I'm talking about ungrouped data. Raw data यूजिंग, कौन सा मेथड यूज करते हैं, यूजिंग टैली मार्क्स. आई थिंक टैली मार्क्स सुना होगा आपने. 8 में भी कुछ कुछ रहता है शायद रिलेटेड टू टैली मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ. तो अभी मेथड तो एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, अपन सीधा एग्जाम्पल लेते हैं. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से, एंड थिंग्स शुड बी क्लियर इनफ. देखो
एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये वाला। बस वही चीज फिर से करनी है अपने को, तो दिस इज देयर। अब देखो, फर्स्ट थिंग द क्वेश्चन इज, क्या लिखा है क्वेश्चन में, the sale of shoes of various sizes at a shop up on a particular day is given below। तो ये डेटा जो दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे, कि एक शॉप है शूज का, उसमें एक दिन में कितने शूज परचेज किए लोगों ने एंड कौन से साइज के परचेज किए। कितने शूज किए वो तो नंबर ऑफ डेटा से आ जाएगा, कौन से साइज का शूज लिया। तो देखो ये 7 नंबर साइज का शूज लिया किसी ने 8 का लिया है, फिर अगले ने फिर 5 नंबर का लिया है, 4 नंबर का, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे डेटा को प्लॉट करना है। तो डेटा को प्लॉट करने का मतलब क्या है कि आई नीड टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये जो डेटा गिवन है दिस इज रॉ डेटा, मतलब अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का मतलब क्या है, उन्होंने रैंडमली लिख दिया कि हाँ 7 नंबर का शूज, पहला 7 नंबर का गया, फिर 8 नंबर का गया, फिर 5 नंबर का गया। तो तुम देख सकते हो कि इतने सारे शूज गए। अब इनको अगर मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सो अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बहुत जल्दी अपन आसानी से बना सकते हैं। कैसे, अभी समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या आता है, करस्पॉन्डिंग टू दिस डेटा, ये डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द शूज, तो मैंने साइज लिख लिया। देन नेक्स्ट मैं क्या प्लॉट करूंगा, टैली मार्क्स इन द सेकेंड कॉलम, एंड आफ्टर टैली मार्क्स आई विल प्लॉट फ्रीक्वेंसी। दीज आर द 3 कॉलम्स। ठीक है, दीज आर दी 3 कॉलम्स। अब ये 3 कॉलम्स आ गए मेरे पास, तो नाउ देखो यहाँ से लाइन बना लेते हैं, यहाँ से एक लाइन बना ली मैंने एंड यहाँ से एक लाइन बना ली। ठीक है, ये एक लाइन बना ली। नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्या दे रखा है यहाँ पे। अब तुम डेटा को ऑब्जर्व करो, डेटा को अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम यहाँ पे लिखते जाओ कि सबसे लोवेस्ट साइज क्या है। सबसे लोवेस्ट साइज आई कैन सी साइज नंबर 4। अब करस्पॉन्डिंग टू, चलो तुम डिफरेंट साइजेस देख लो, एक तो 4 साइज का शूज दिख रहा है, फिर उसके बाद 5 भी है, सो 5 नंबर, देन 6 नंबर का भी शूज है, देन आई कैन सी 7 नंबर, आई कैन सी 8 नंबर एंड आई कैन सी 9 नंबर एज वेल। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके लिखता हूँ। So I can see a 4 number shoes, 5, 6, 7, 8 and 9. Now मैं क्या करूंगा इसमें, हाँ पता है बेटा आपने कर लिया होगा। आई विल गो टू द फर्स्ट नंबर, ये 7 नंबर का है, तो 7 नंबर मतलब इस रो में आई विल मार्क अ लाइन। 7 नंबर का शूज काउंट हो गया। करस्पॉन्डिंग टू एवरी नंबर नाउ आई विल मार्क। 8 के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक लाइन आ जाएगी, फिर 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक लाइन आ जाएगी, फिर 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ लाइन आ जाएगी, फिर 9 के करस्पॉन्डिंग यहाँ लाइन आ जाएगी, 8 के करस्पॉन्डिंग यहाँ लाइन आ जाएगी। अब तो कोई भी कर सकता है, तो बच्चों का खेल हो गया ये तो, है ना। 7 नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक लाइन आएगी, 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ लाइन आएगी, फिर 8 के करस्पॉन्डिंग कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, देन 9 के करस्पॉन्डिंग यहाँ, 6 अगेन, देन 7 अगेन, देन 9 अगेन, फिर आ जाएंगे 8 पे, फिर 7 पे, देन अगेन 9, फिर 9। अब देखो 4 लाइन हो गई ना, सो द फिफ्थ लाइन विल बी अ क्रॉस, इस तरह से क्रॉस आएगा फिफ्थ लाइन के लिए। फिर मैं 6 पे आ जाऊंगा, 6 के बाद फिर से 5 पे आ जाऊंगा, 8 अगेन अक्रॉस, फिफ्थ लाइन शुड बी दी क्रॉस। 9 पे आ जाऊंगा, 9 वन मोर लाइन, फिर 9 से स्टार्ट करूंगा, फिर 4, फिर अगेन 5, फिर ये क्रॉस 5, फिर 8, फिर 8 के बाद अगेन 9 एंड देन अगेन 6। हो गया, एवरी डेटा हैज बीन प्लॉटेड। अब तुम क्या करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखोगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा डेटा कितनी बार आया। सो डेटा नंबर जो साइज नंबर 4 है दैट हैज कम 2 नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसके 2 शूज बिके। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अब मैं क्या बता सकता हूं, इससे मैं ये बता सकता हूं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे 4 नंबर ऑफ शूज के 4 नंबर शूज के 2 शूज बिक गए थे, है ना। दिस इज वेरी इजी, है तो बहुत इजी है। आगे वाला थोड़ा अभी और करेंगे। सो दिस इज 5, देन करस्पॉन्डिंग टू दिस इज 4, फिर ये है 5 अगेन, राइट।
करस्पॉन्डिंग टू 7, आई थिंक करस्पॉन्डिंग टू 7 मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 1 2 3 4, 4 ही आने चाहिए थे। हाउ डिड आई राइट 5? सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक। कर लो, मतलब दिस यू कैन डू योरसेल्फ। सो यहाँ पे 4 आना चाहिए, दिस शुड बी 4 एंड करस्पॉन्डिंग टू 8 देयर शुड बी 6, ये 6 आना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग टू 9 दिस शुड बी 7। नाउ द आइडिया इज कि ये जितना भी डेटा लिखा था, दिस वाज 28 डेटा, ये 28 वैल्यूज लिखी थी, तुम इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे ना, सो दिस शुड ऑलवेज सो बी इक्वल टू 28, ये भी 28 के इक्वल होगा। इट इज नेसेसरी फॉर दिस टू बी 28। ठीक है, हाँ चलो। सो आई थिंक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा तो बहुत इजी है, अनग्रुप्ड या रॉ डेटा। नाउ लेट्स कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए मैंने बोला ना स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी, तो जल्दी जल्दी से खत्म कर सकते हैं इसको। अभी तो लास्ट 2 टॉपिक्स बचे, वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर इज प्रोबेबिलिटी, तो आई थिंक दोनों खत्म हो जाएंगे जल्दी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ frequency distribution of grouped data। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या हुआ है कि अभी जो डेटा मिलेगा ना हमें, वो ग्रुपिंग करके मिलेगा। ग्रुपिंग करके मिलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मार्क्स की बात करेंगे तो वो वहां पे लिखा रहेगा कि 0 से 10 कितने मार्क, कितने लोगों के मार्क्स है, या फिर 11 से 20 कितने लोगों के मार्क्स है। इस तरह से ग्रुपिंग करी रहेगी, ठीक है। तो इन ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑल्सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज एंड अनदर इज इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो देखो, नाउ अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि जो ग्रुपिंग होती है दैट कैन बी इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म या इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अभी देखो। एक्सक्लूसिव फॉर्म में मैं ग्रुप इस तरह से लिख लेता हूं, दैट इज 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, इस तरह से लिख लिया मैंने, एंड सो ऑन जो भी लिखा होगा। अब इस एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि ये जो 10 वाला डेटा होगा वो इसमें इंक्लूड होगा या इसमें इंक्लूड होगा, मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊंगा। सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दिस 10 जो डेटा होगा वो यहाँ पे ना इंक्लूड होके यहाँ इंक्लूड होगा। सो 10 इज इंक्लूडेड हियर, 10 is included here and here 10 is not included। तो अगर जब मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी तो फ्रीक्वेंसी मैं 10 to 20 वाले के ग्रुप में डालूंगा एंड आई वोंट पुट दैट इन 0 to 10, ठीक है। चलो, तो स्टिल वी हैव हाफ एन आवर, अभी 8 o'clock तक क्लास है ना, हाँ 8 o'clock तक क्लास है। देन लेट्स गो टू अनदर, मतलब अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। yes it is still 8, then inclusive form। so inclusive form में हम कैसे लिखते डेटा, we can write this as 0 to 10, then 11 to 20, then 21 to 30। so inclusive में क्या होता है, the lower and the upper both are included, both the values are included, ठीक है। lower value and upper value both are included। exclusive में क्या होता है कि the upper value is not included, so that is what I should understand कि in exclusive form the upper value is not included, in the inclusive form lower and upper both are included, ठीक है। अब इस exclusive को या inclusive, चलो inclusive को अगर exclusive में convert करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, understand that also, वो भी यही explain कर देता हूँ। so conversion of inclusive to exclusive form, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 0 से 10 लिखा हुआ है, फिर 11 से 20 लिखा हुआ है, तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको एक्सक्लूसिव, जहां पे 0 से 10 लिखा हुआ है फिर 10 से 20 लिखा हुआ, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, बट चलो फॉर्मूला लिखने से पहले अगर मान लो कि ये सीरीज ही लिखा है मेरे पास 0 से 10, फिर आई हैव 11 to 20 एज द ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, यू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस 10 and 11। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं,
टू अंडरस्टैंड मैंने इसको ऐसे लिख लिया 0 से 10 देन 11 से 20. तो मैंने क्या किया, I have calculated the difference between 10 and 11. What is the difference between 10 and 11? This anyone can tell, that is 1. अब ये 1 आ गया तो करस्पॉन्डिंग टू 1 मैंने इस वैल्यू को हाफ कर दिया. I have done half of this value. तो 11 minus 10 is 1. तो मैंने हाफ कर दिया तो that will be 1/2. अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 1/2 आया, 1/2 is nothing but 0.5. ये जो 0.5 वैल्यू है वो मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो दिस विल बी 0 to 10.5 नाउ एंड 11. चलो इसको फिर इस तरह से लिख लेते हैं, 0 to 10 plus 0.5 and then comma 11 minus 0.5 to 20. So now this is 0 to 10.5 and 10.5 to 20. So तुम देख सकते हो अभी कि ये जो एक्सक्लूसिव था, करेक्ट, दिस वाज इंक्लूसिव. तो ये जो इंक्लूसिव था इसको मैंने एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज नाउ एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि अगर मेरे पास 10.5 वाला डेटा है तो वो यहां इंक्लूड नहीं होगा, वो यहां इंक्लूड होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी मतलब उसको तुम ये जो हमने कन्वर्जन किया हुआ है ये आगे में यूज भी आएगा, सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. हाँ, अभी देखो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना मेरा, ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, कौन सा एडजस्टमेंट फैक्टर, दिस 0.5 जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये अब हमेशा तो ऐसे क्लासेस मिलेंगे नहीं तुमको 0 से 10, तो कुछ भी क्लास मिलेगा तुमको. सो करस्पॉन्डिंग टू दैट व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट फैक्टर, मैं वो लिख लेता हूँ. सो एडजस्टमेंट फैक्टर is equal to half of 1/2 of लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास. आई थिंक लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सबको समझ में आता होगा. लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास minus the upper limit. Okay, I'll explain one more time, don't worry. Lower limit of one class minus upper limit, क्वेश्चन करेंगे ना तो I'll explain upper limit of previous class. देखो सर, इज इट ओनली फॉर द नंबर बिटवीन 10 to 11, राइट सर? अच्छा, ओके, अभी एक्सप्लेन करता हूँ. अंडरस्टूड. लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ अदर क्लास. देखो, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन दिस मोर. दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इस पे आई स्पेंड सम टाइम. ये तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया. हाँ, अब कुछ लोग मुझे पूछ रहे सर व्हाट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो देखो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी. देखो, whenever a class is given to me, ठीक है, with respect to this these are the definition everyone should know कि क्या होती है. चलो, I have those written in with me, तो I'll copy that first. And then again we will understand this. तो चलो इसको समझते पहले, just a minute. तो आप वो कन्वर्जन को बाद में समझना, पहले ये समझ लो. आई थॉट कि आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट पता होगा, बट सिंस मेनी ऑफ देम डोंट नो, सो फर्स्ट विल डिस्कस दिस. देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप डेटा. तो इसमें क्या है कि क्लास बाउंड्रीज और ट्रू वैल्यूज एंड ट्रू लोअर लिमिट्स, ये ट्रू अपर छोड़ दो, तुम क्लास बाउंड्रीज पे ध्यान दो. ठीक है, दी अगर मेरे पास इस तरह का ग्रुप लिखा हुआ है ना, a to b is the group, so this a value is known as the lower limit, this is known as lower limit of the class. ठीक है, फिर b is known as the upper limit, b is known as the upper limit.
ठीक है। अब अगर मेरे से किसी ने पूछा व्हाट इज द क्लास साइज, देखो क्लास साइज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। सो फॉर दिस द क्लास साइज will be a minus b, a minus b और b minus a whatever it is, this is the class size। ठीक है। और अगर मेरे से किसी ने क्लास मार्क पूछा, क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिड वैल्यू, है ना। तो क्लास मार्क इज व्हाट, क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यू शुड अंडरस्टैंड। सबसे पहले लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, फिर क्लास साइज एंड देन क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूं कि मिड वैल्यू ऑफ क्लास। मिड वैल्यू ऑफ क्लास का मतलब क्या हुआ कि तुम लोअर लिमिट को लो और अपर लिमिट को लो, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास एंड दैट इज नथिंग बट नोन एज क्लास मार्क। ठीक है। चल, अब ये तो सारा कन्वर्जन लिखा हुआ है, वो अभी समझाता हूं मैं कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। बट बिफोर दैट दिस लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लास साइज एंड क्लास मार्क शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है ना। लेट्स कम टू दी कन्वर्जन पार्ट। तो मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है, तो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या हुआ, देखो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब ये हुआ कि मैं चेंज कर देता हूं क्लास टाइप। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 10 से लेके 20 तक, देन आई हैव 21 टू 30, फिर आई हैव 31 टू 40। अगर इस तरह से डेटा लिखा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज इंक्लूसिव। क्यों इंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हो जाएंगे इस क्लास में। दिस क्लास इंटरवल इज हैविंग 10 एंड 20 डेटा इंक्लूडेड इन देम। अगर मैं इसमें जाऊं तो 21 एंड 30 इज इंक्लूडेड, सो दिस इज इंक्लूसिव। अगर मुझे इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास होता है दैट शुड बी द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। देखो ना यहाँ पे जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ आई अंडरस्टैंड दैट, तो मुझे यहाँ पे दो सेम नंबर लाने पड़ेंगे, 20 और 21 तो डिफरेंट नंबर्स है, सो आई नीड सेम नंबर्स। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक अप दीज टू क्लासेस, एक का लोअर लिमिट उठाया, दूसरे का अपर लिमिट उठाया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है। सो द एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए मैंने क्या किया, एक क्लास का लोअर लिमिट उठाया और अगले का, मतलब एक का अपर लिमिट उठाया, दूसरे का लोअर लिमिट उठाया। सो यहां पे अपर लिमिट कितना है 21 एंड माइनस लोअर लिमिट कितना है, यहाँ पे लोअर लिमिट है ना ये 21 और यहाँ पे ये अपर लिमिट है 20। और ध्यान रखना कि ये सक्सेसिव क्लासेस के होने चाहिए, मतलब अगर इसका उठाया तो ये इधर नहीं उठा सकता मैं, दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज देन ये क्लास मिस हो गया। सक्सेसिव क्लासेस का होना चाहिए, दिस इज द डिफरेंस। और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं। सो वंस आई डू दिस, तो व्हाट इज दिस इक्वल टू 1/2, ये 1/2 आ गया। सो दिस इज द एडजस्टमेंट फैक्टर। अब मैं क्या करूंगा कि इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए आई डू इज कि 10 को एज इट इज रखूंगा, फिर ये 20 में क्या करूंगा मैं, इस 20 में मैं 1/2 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा या ऐड करूंगा, आई विल ऐड इट अप। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1/2। सो ये चेंज हो गया। फिर कॉमा, यहाँ पे 21 को चेंज करना था तो 20 और 21 को सेम बनाना था, तो सेम कहां पे बना रहे, तो उसके मिड पे बना रहे, कॉमन सेंस है ये। सो दिस विल बी 21 माइनस 1/2 अप टू 30। सो अब अगला वाला लिखना होगा तो एज इट इज हम लिख सकते हैं, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, यही तक लिखते हैं। सो दैट विल बी नाउ 10 माइनस 20.5 और यहाँ पे आ जाएगा 20.5 टू 30। दिस इज हाउ आई कैन राइट दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कन्वर्जन वर्क करेगा। किसी को कोई डाउट है क्या अभी फिर से? अभी देखो और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो विल यू विल अंडरस्टैंड मोर। अगर तब तक किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी। हाँ, तो नाउ लेट्स टेक अप दिस। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ तुमको।
एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, देन थिंग शुड बी क्लियर। चलो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने कन्वर्जन वाला क्वेश्चन ले लिया। तो नाउ सेम क्वेश्चन है, बट यू शुड अंडरस्टैंड। हाँ, why it is necessary to calculate this value, you'll understand now। वो इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर मेरे को मान लो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 to 10 और फिर 11 to 20 लिखा हुआ है। मान लो मेरे पास जो डेटा लिखा है, उसमें डेटा में मुझे गिवन है 10.5। अब मेरे को डेटा में 10.5 लिख दिया किसी ने। अब मैं 10.5 को यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, बताओ। कैनॉट डिसाइड। कैसे डिसाइड करोगे? तो इसीलिए इस 10.5 को कहां पे किस क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे, वो समझने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए आंसर आ गया आपके पास कि दिस, ये डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस, टेंशन मतलब, ये डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस का मतलब वही है कि दिस इज इंक्लूसिव। डिसकंटिन्यूस का मतलब इंक्लूसिव, और ये टू एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये बोलने का मतलब है। हाँ, 10.5 निकालने के बाद कहाँ रखेंगे तो अभी देख समझ में आएगा। वो तो फिर एक्सक्लूसिव में जाओ। एक्सक्लूसिव में मैंने क्या समझाया कि जब एक्सक्लूसिव में मेरे पास यहाँ पे ये लिखा था, कहाँ गई वो एक्सक्लूसिव सीरीज, हाँ, एक्सक्लूसिव में मेरे पास 0 से 10 लिखा हुआ है और 10 से 20 लिखा हुआ है, तो मैं 10 को इंक्लूड कहाँ करूंगा? अगले वाले में इंक्लूड करूंगा ना, तो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो आई थिंक अभी तेरे धीरे धीरे आंसर आ रहे होंगे। हाँ, अभी देखते ना, इस क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे करेंगे। तो इस क्लास इंटरवल को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो इंक्लूसिव है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई विल कैलकुलेट द एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करो। एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए अपन क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए विल गो टू द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज हाफ टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पे इस क्लास का अगर मैंने अपर लिमिट लिया, तो इसका लोअर लिमिट लूंगा। तो एक का अपर लिमिट ले लिया, तो दूसरे का लोअर लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो तुम अगर यहाँ पे बोलोगे सर 10 माइनस 11 करेंगे तो -1 आएगा, तो फिर -1 क्यों नहीं ले रहे होंगे? तुम 11 माइनस 10 लिख लो ना। सो बड़ी में से छोटी वैल्यू को कराओ, ये हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा तुमको, तो इसको 11 माइनस 10 लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। तो ये आ जाएगा 0.5। अब अगर मेरे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, तो नाउ दी व्हाट यू से एक्सक्लूसिव सीरीज को मैं से कैसे लिख सकता हूँ? सो एक्सक्लूसिव फॉर्म या सीरीज, जो भी लिखना है। तो सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है? 1 to 10। तो दिस आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा? देखो, 1 से लेके 10 तक था, सो नाउ इट वुड बी फ्रॉम 1 to 10 में क्या करूंगा? 10 में 0.5 को ऐड करूंगा, सो दिस विल बी 10.5। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 11 में से क्या करूंगा? 10.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो दिस विल बी 10.5 टू 20 में क्या करूंगा? 0.5 ऐड करूंगा, 20.5। फिर 21 में क्या करूंगा? 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो 20.5। देन 30.5 आ जाएगा, एंड देन 30.5 में से क्या आएगा? 30.5 में से कहां तक जाएगा? 40.5 तक, 40.5 तक, एंड देन 40.5 से लेके 50.5 तक। सो ये कन्वर्ट कर लिया हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब किसी ने मेरे से पूछा सर 10.5 फिर भी कहाँ इंक्लूड करेंगे? तो बेटा जब ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया, तो तेरे को एक्सक्लूसिव का रूल पता है कि अगर 10.5 आया तो 10.5 इस क्लास में इंक्लूड होगा, इसमें नहीं होगा। ये तो मैंने पहले समझा दिया कि एक्सक्लूसिव फॉर्म का ये रूल है कि जब 1 से 10 लिखा हुआ है, तो 10 यहाँ पे इंक्लूड ना होके अगले वाले में इंक्लूड होता है। ठीक है, आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर। चलो, now if this is clear, now what we will do is we'll do some questions based on class interval और class mark में कुछ easy easy questions होते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट।
ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन विल डू दिस। सर वोंट वी सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम 1? हाँ 0.5 फ्रॉम 1 भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट, मतलब यस दैट इज ट्रू, वो करना चाहिए एक्चुअली। सो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोअर लिमिट भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसके पहले कोई क्लास इंटरवल नहीं था ना, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बट हाँ एक्चुअली इट शुड बी देयर। तो यहाँ पे ये 0.5 आएगा। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस मच, फाइंड द क्लास साइज एंड ऑल द क्लास इंटरवल। तो नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमें क्या दे रखा है? वी हैव बीन गिवन क्लास मार्क। नाउ क्लास मार्क क्या होती है? क्लास मार्क आर दी मिड वैल्यू, क्लास मार्क आर दी मिड वैल्यूज, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्लास साइज। तो मान लेते जैसे पहला क्लास साइज होगा ए से लेके बी तक, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? इसका मिड वैल्यू दे रखा है। मिड वैल्यू मतलब a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, जैसे 7 हो गया। अंडरस्टैंडिंग? ये सबसे पहले समझ में आया क्या सबको? ठीक है। तो जो मेरे पास क्लास साइज होता है दैट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क, है ना। क्लास साइज को क्या बोल सकता हूं? डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, ठीक है। देखो अब अगर तुम इसको इस तरह से समझो, देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर मैंने लिखा मेरे पास क्लास साइज है 10 से 20, फिर मैंने लिखा 20 से 30, फिर मैंने लिखा 30 से 40, तो अब मुझे बताओ कि इसके लिए क्लास मार्क क्या है? इसके लिए क्लास मार्क क्या है? 10 से लेकर 20 के लिए क्लास मार्क क्या होगा? 10 से लेकर 20 तक क्लास मार्क बताओ। 10 से लेकर 20 के लिए क्लास मार्क 15, क्लास मार्क इज 15। फिर इसके लिए बताओ 20 से 30 के लिए, 20 टू 30 के लिए क्लास मार्क इज हाउ मच? 25, 25। तो ये आ गया 25। फिर 30 से लेकर 40 तक क्लास मार्क कितना होगा? 35। यस और नो? 35 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ तुम देखो अभी, बस अभी ये एग्जांपल बस समझाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए बता रहा हूं। अब मैंने पूछा कि इसका क्लास साइज कितना है, इसका क्लास साइज कितना है? व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज इज डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा 10। क्लास साइज इज 10। तो ये क्लास साइज आ गया। अब इसका क्लास साइज भी 10 होगा और इसका क्लास साइज भी 10 होगा। अगर मैंने ये क्लास मार्क लिखा हुआ है मैंने, अगर मैंने क्लास मार्क को भी सब्ट्रैक्ट किया तो भी मुझे क्लास साइज ही मिलेगा। तुम देखो 25 माइनस 15 करोगे तो 10 मिलेगा, यहाँ पे 35 माइनस 25 करोगे तो 10 मिलेगा। सो क्लास साइज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क्स ऑल्सो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। सो व्हाट आई सेड इज दैट, ये तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था, अब मैं लिखता हूं। अगर ये यहां पे समझ में आया तो मैं लिख सकता हूं क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास साइज, हाँ नहीं सॉरी, क्लास मार्क, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में जाएंगे तो मेरे को क्लास मार्क तो दे रखा है ऑलरेडी, एक 17 है, 37 है, 13 है, 19 है। तो इसमें से मैं दो दो सक्सेसिव क्लास मार्क ले लेता हूँ। इफ आई पिकअप टू सक्सेसिव क्लास मार्क, 7 और 13 ले लिया, तो मेरे पास क्लास साइज आ जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 7 कर लेता हूँ यार, म्यूट करना, म्यूट करना। 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझ में आएगा कि मैंने क्लास साइज कैसे निकाला। सो क्लास साइज इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर मेरे पास क्लास साइज आ चुका है तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं अभी। मान लेते कि पहला क्लास इंटरवल होगा ए से बी तक, मान लेते ए से बी होगा, ठीक है। तो शुरू हो जाए। मैंने बोल दिया लेट दी लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास बी ए, ठीक है। लोअर लिमिट को ए ले लिया। तो अब अगर मैंने लोअर लिमिट को ए ले लिया तो ये लोअर लिमिट है। अब मुझे क्या चाहिए?
क्लास साइज पता है, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? अपर लिमिट विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर लोअर लिमिट को a बोला है तो अपर लिमिट विल बी इक्वल टू a+6 हो जाएगा ना, क्योंकि क्लास साइज निकाल लिया मैंने। तो लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे 6 तो अपर लिमिट आ जाएगी। अब अगर अपर लिमिट आ गई तो मेरे को a की वैल्यू पता चल सकती है क्या? a की वैल्यू बिल्कुल पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी a की वैल्यू? सोचो, a की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? क्लास मार्क का यूज करूंगा। तो मैं फर्स्ट क्लास के लिए बोल सकता हूं देयरफॉर कि क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। दिस शुड बी इक्वल टू 6, सॉरी 6 नहीं 7 है ना। फर्स्ट क्लास मार्क देखो 7 के इक्वल है, तो सिंस दिस इज 7 तो यहां से कितना आएगा? 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 8, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू 4 आ गई। देखो किसी को दिक्कत? नहीं ना? तो क्लास इंटरवल कितने आ जाएंगे? क्लास इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे? पहला क्लास इंटरवल अब बताओ कितना हो जाएगा? द फर्स्ट क्लास इंटरवल भी लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 4 प्लस 6 10। यस, और तुम देखो इसका क्लास मार्क विल बी 7। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 10 से लेके 16 तक। इसका क्लास मार्क निकालो 13 आएगा, और वो 13 दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये आ गया क्लास इंटरवल। कहाँ तक जाना है? 43 तक बोला उसने, तो ये सेकंड क्लास इंटरवल। फिर आएगा 16 से लेके 22 तक, फिर आएगा 22 से लेके 28 तक, 28 से लेके 34 तक, 34 से लेके 40 तक, एंड 40 से लेके 46 तक। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, फिर अनग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे हम। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी किया नहीं हमने, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म पढ़ लिया, और बेसिक आइडिया ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क। ठीक है, तो अभी यही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, सो बाय एवरीवन, एंड नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा अपना स्टैटिस्टिक्स। ओके सर, थैंक